Hello, plus two students. I'm Ruchita Sharma, lecturer in English from GSS Bertie. Today, our lesson is Lesson 3 Deep Water by William Douglas from the book Flamingo. Students, have you ever had any fear in life? क्या आपको कभी किसी चीज़ का भय हुआ है? क्या आप कभी किसी चीज़ से डरे हैं? Like fear of lizards, fear of cockroaches, fear of snakes, fear of exam, fear of attending school, fear of asking questions from your teachers, or fear of being alone, or fear of any disease. तो बच्चों, आपने जब किसी डर का सामना किया, क्या आपने कोई कदम उठाए उससे निजात पाने के लिए? In this story, we are going to read about one such person who had fear of water. His name is William Douglas. He was born in Minetown of Minnesota in the USA. He was a teacher for 2 years and then he pursued a legal career. Soon he became close to the president of the USA, President Roosevelt. He became his friend and advisor. तो विलियम डगलस ने हमें इस फर्स्ट पर्सन अकाउंट डीप वाटर में अपने इस पानी से जो भय उनको बचपन में हुआ उससे रूबरू कराया है और फिर उन्होंने क्या कदम उठाए उस भय से उबरने के वो भी हमें बताया है। तो बच्चों, एक आम सी बात है कि सभी जो हैं मानव वो किसी न किसी भय के शिकार कभी न कभी होते ही हैं। Like when I was young, I feared being alone in a room. I feared to sleep alone because I feared that I will have bad dreams. Some scary dreams. I would have nightmares and then I would be scared out of my wits. So I never wanted to sleep alone. But as I grew up, I overcame this fear because whenever it would be light, तो मैं हंसती थी कि देखो रात को मैं कितना डर रही थी। सब जगह रोशनी है, ये तो जब सूरज चला जाता है तो अंधेरा होगा, लाइट ऑफ कर देंगे तो अंधेरा होगा, पर चीज़ें तो वही हैं, कमरा तो वही है, तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है। Similarly, I had one friend, one classmate who became so much overcome with examination fear. जब भी हमारे बोर्ड के एग्जाम्स आते थे तो वो डर जाती थी। वो इतना डरती थी कि वो उसे बुखार आ जाता था, असल में बुखार आ जाता था। वो साइकोलॉजिकली डिप्रेस हो जाती थी, वो रोने लगती थी। She would become so panicky, nervous. She would get the heebie-jeebies and ultimately she was unable to take the exam. कई साल ऐसा चला and then I don't know what happened, but later on I met her so many years ago and I was so happy because she was pursuing a job, a government job in Diet Jukhala. तो बच्चों, कई प्रकार के फियर्स हमारे दिलो दिमाग में बैठ जाते हैं, पर जो मैसेज हमें इस पार्ट से मिलता है वो है कि अगर हम कदम उठाएंगे, अपने फियर्स का सामना करेंगे और अपने फियर को एक थर्ड एंगल से देखेंगे, क्रिटिकली एग्जामिन करेंगे, then there is no need to fear. The fear vanishes. All we have to fear is fear itself. ये प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने वाक्य बोला है। तो अब ये जो लेसन है विलियम डगलस के द्वारा लिखा हुआ, इसमें मैं आपको बता दूं कि लेसन लंबा है, तो हमने अच्छी तरह से इसके ऊपर अपना प्रभाव बनाने के लिए 4 हिस्सों में इसको डिवाइड किया है। So we'll pursue the first part today and that will begin from it had happened when
I was 10 on page number 23 to the phrase and pedal to the edge of the pool on page number 25. बच्चों, इस पाठ में हम पढ़ेंगे एक लड़के की कहानी जो कि उसकी सच्चाई है। वो बहुत ज़्यादा डरता था पानी से। विलियम डगलस अपने बचपन में पानी से बहुत भयभीत थे, पर अपनी दृढ़ निश्चय के कारण और अपनी तन्मयता के कारण उन्होंने इस डर को हरा दिया। So his sheer guts, determination helped him to become a first-rated swimmer. He started witnessing his fear critically, and gradually his fear of water vanished forever. इस पाठ में विलियम डगलस ने अपने पानी से जो उनको भय था उसका गहरा मनोवैज्ञानिक आंकलन किया है। आओ बच्चों, तो हम रीडिंग शुरू करें इस पाठ की। Open the page on page 23. It had happened when I was 10 or 11 years old. I had decided to learn to swim. मिसएडवेंचर जो विलियम डगलस के साथ हुआ उसकी बात हो रही है। There was a pool at the YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. तो उनको ये जो मौका था पूल में तैरने का, सीखने का, तैराकी सीखने का, वो YMCA यंग मेन क्रिश्चियन एसोसिएशन का संगठन का एक स्विमिंग पूल था, तरणताल था, याकीमा नामक शहर में। याकीमा नदी का नाम भी है, शहर का नाम भी है यूएसए में। वहां पे उन्होंने ये मौके का फायदा उठाया। द याकीमा रिवर वाज ट्रेचरस, बहुत खतरनाक। Mother continually warned against it and kept fresh in my mind the details of each drowning in the river. तो माँ बार बार मुझे इस खतरे से अवगत कराती थी कि कितना खतरनाक है इस भयानक नदी में तैरना। और जब भी कोई हादसा होता था माँ मुझे उसकी रिपोर्ट एकदम दे देती थी ताकि मेरे मन में डर समा जाए। Because she was very worried about it that I, being a young boy, may not go to the river and start swimming and then get drowned. But the YMCA pool was safe. It was a safe place. It was only 2 or 3 feet deep at the shallow end. उथले पॉइंट में सिर्फ 2 या 3 फुट की गहराई थी इस पूल की। And while it was 9 feet deep at the other, the drop was gradual. और जहाँ सबसे गहरा तल था वो 9 फीट था। I got a pair of water wings and went to the pool. I hated to walk naked into it and show my skinny legs, but I subdued my pride and did it. तो बहुत पतला दुबला था विलियम डगलस और शर्मा रहा था कि मैं ऐसे अपनी टांगे कैसे दिखाऊं, पर फिर भी उसमें दृढ़ता थी कि मैंने स्विमिंग सीखनी है। और ये जो शर्म थी उसको उबर के वो जाता है पूल में तैराकी सीखने। From the beginning, however, I had an aversion to the water when I was in it. तो वो रिट्रैक्ट करता था, पानी से पीछे हटता था बचपन से ही। This started when I was 3 or 4 years old, and father took me to the beach in California. He and I stood together in the surf. I hung on to him, yet the waves knocked me down and swept over me. I was buried in water. My breath was gone. I was frightened. Father laughed, but there was terror in my heart at the overpowering force of the waves. कहता है कि ये जो डर मेरे अंदर समाया, ये तब की बात है जब मैं 3 या 4 वर्ष का था और मैं पिता के साथ कैलिफोर्निया बीच में समुद्र तट पर गया। अचानक इतनी बड़ी वेव आ गई और उस लहर के झाग में मैं बिल्कुल दफन हो गया। तो मैं तो घबरा गया, पर मेरे पिता, क्योंकि मैं ब्रेथलेस हो गया, हाँफ गया, पानी मेरे अंदर चला गया, और मेरे जो पिता थे वो खिलखिला के हंसते रहे। लेकिन इस बात का जो प्रभाव ये पड़ा कि उनके अंदर, विलियम डगलस के अंदर एक पानी का जो भय था वो बहुत गहरा चला गया।
My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fears. But in a little while, I gathered confidence. I pedaled with my new water wings, watching the other boys and trying to learn by aping them. I did this 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened. अब विलियम डगलस का कहना है, आप समझ ही गए होंगे कि जब मैं YMCA पूल में गया तो वो जो पुरानी यादें थी बचपन की वो दोबारा मेरे स्मरण पट पे आ गई और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था पानी को देख के, क्योंकि मैं डरने लगा था। वो बचपन का डर दोबारा ऊपर आ गया, रिवाइव हो गया। पर धीरे धीरे मैंने फिर अपना आत्मविश्वास इकट्ठा किया और मैंने जो अपने सेफ्टी विंग्स पहने हुए थे पैरों में ताकि मैं डूबूं ना, उन्हें कहा जाता है वाटर विंग्स, उनसे मैं पानी में अपने पैर मारता रहा साइड में बैठ के और मैं दूसरे बच्चों को देखता रहा, लड़कों को देखता रहा और कोशिश करता रहा उनकी नकल करने की। तैराकी में कैसे वो कर रहे हैं मैं भी वैसे करने लगा, इमिटेट करने लगा। एपिंग मीन्स टू इमिटेट, कॉपी करने लगा। तो मैंने ऐसा 2-3 दिन किया। फिर मैं थोड़ा आसान महसूस कर रहा था, सहज महसूस कर रहा था पानी में, और तभी ये मेरे साथ दुर्घटना घट गई। ये मिसहैप, ये मिसएडवेंचर हो गया। I went to the pool when no one else was there. मैं गया उस तरणताल में जब कोई और वहां नहीं था। The place was quiet, the water was still, and the tiled bottom was as white and clean as a bathtub. I was timid about going in alone, so I sat on the side of the pool to wait for others. तो कैसा माहौल था वहां पे? बिल्कुल चुप्पी छाई हुई थी, शायद कोई और नहीं था। पानी बिल्कुल शिथिल था, बिल्कुल मोशनलेस, और जो तरणताल का जो बिल्कुल नीचे वाली सतह थी वो साफ दिखाई दे रही थी, बिल्कुल सफेद थी, जैसे कि हमारे घर में बाथ टब होता है नहाने के लिए अच्छे बाथरूम्स में, वहां पे ऐसा लग रहा था उस तरणताल को देख के। लेकिन मैं अकेला उस स्विमिंग पूल के अंदर जाने से थोड़ा घबरा रहा था। मैं कायर महसूस कर रहा था कि अंदर कैसे जाऊं, मैं डर रहा था। इसलिए मैं साइड पे बैठ गया, पूल की साइड पे बैठ गया। मैं इंतजार करने लगा कि और आएंगे तैराक और तब मैं भी अंदर जाऊंगा। I had not been there long when in came a big bruiser of a boy, probably 18 years old. He had thick hair on his chest. He was a beautiful physical specimen with legs and arms that showed rippling muscles. He yelled, "Hi, skinny, how would you like to be ducked?" With that, he picked me up and tossed me into the deep end. I landed in a sitting position, swallowed water, and went at once to the bottom. I was frightened, but not yet frightened out of my wits. On the way down, I planned, when my feet hit the bottom, I would make a big jump, come to the surface, lie flat on it, and pedal to the edge of the pool. तो अब आप समझ गए होंगे कि क्या कह रहा है विलियम डगलस। अभी बहुत देर नहीं हुई थी कि एक बहुत हृष्ट पुष्ट 18 वर्षीय शायद लड़का था वो, और ही वॉज वेल बिल्ट। वो आया और उसने अपनी मजबूती से उसको चिढ़ाने की कोशिश की और कहा कि दुबले पतले इंसान, कैसा लगेगा तुम्हें अगर मैं तुम्हें एक डुबकी दे दूं। और उसने कुछ उसका सुना नहीं। विलियम डगलस कुछ बोल पाता इससे पहले उसने उसको उठाया और फेंक दिया जहां पे गहराई ज्यादा थी, और वो उस पूल में पहुंच गया, गिर गया। पर वो इतना भी घबराया नहीं था कि वो प्लान ना कर सके, और उसने प्लान किया कि मैं जब सतह को छूऊंगा तो मैं अपने आप को धकेलूंगा और मैं उस जंप के फोर्स से, उस अपने आप को धक्का देने के फोर्स से वापस साइड पे आ जाऊंगा। So students, this is for today,
and I would like you to go through the reading once again so that you are able to know the vocabulary and all else. So have a blessed day. Bye bye.